अब मैं बिना वक्त जाया किए सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे अगली जो हमारे स्पीकर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता पचौरी मैम को। मैं सुनीता मैम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैम अपना डेलिब्रेशन शुरू करेंगी। मैम सुनीता के जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है मैं उनकी बात करूंगा। शी हैज बीन अवार्डेड विद यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल in BA honors in geography. Then she got the certificate of excellence by the France Congress Paris for outstanding presentation in 2016. Then she got a certificate of merit by the UN Women US for contribution in social welfare in Rajasthan in 2015. Then she got Teachers Excellence Award in 2015 and awarded for outstanding contribution and continued this dedication towards promotion of education by Lions Club Ajmer. Lions Club Ajmer again awarded her with the same award in 2017. Then State Best NSS Officer Award she got in 2005 from Commissionerate College Education, Government of Rajasthan. Then Officer Quality Award she got from All India NCC PRCN course in 2007 Gwalior. She is having vast teaching experience and research experience. She has supervised many PhDs and 10 students are still working under her supervision. Then she is having about 3 decades of teaching and research experience, published more than 54 articles in various journals of international and national reputation. She has published 5 books and 3 books are in progress. She is in the editorial board of Khoj, the International Research Journal of Geography. She has organized many national and international conferences and acted as a resource person in several conferences in India and abroad. She is also a member of various editorial boards of journals and member executive appointed as a member executive of Indian Remote Sensing Society of India. She has completed 5 minor projects funded by various agencies like UGC, ICSSR, TIS, IDS, and also completed 3 major projects funded by UGC, ICSSR, TIS, etc. She is also doing consultancy at various capacities, and she has contributed immensely in research initiatives. She is a research analyst at Tata Institute of Social Science, Mumbai. She is a project research scholar at UGC major project and resource delegate as a consultant for civil service examination at SPC Government College, Ajmer. Data compiler and report writer for various this NGOs and counselor for Indira Gandhi Open University, New Delhi. She is right now having the post of Assistant Director of Ajmer Division. I'm very happy to have you here, ma'am. Thank you, JD, for detailing about me. मैं डॉक्टर विनोद कुमार भारद्वाज, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर, ज्ञान गंगा के अंतर्गत चलने वाले इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। I'm talking about resource geography, as JD told me कि you speak on resource geography. तो जहाँ हम रिसोर्स ज्योग्राफी की बात करते हैं, रिसोर्स ज्योग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर वी टॉक अबाउट नेचुरल एंड बायोटिक रिसोर्सेस, उसका यूटिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें हम बहुत सारे कॉजेस की बात करते हैं रिसोर्सेस में, एंड ऑलवेज वी टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेस, हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, बट वी नेवर ट्राइड इन ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट than natural resources, because human is use natural resources. So जब हम ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो संसाधन पाए जाते हैं
उनको हम हमारी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार उपयोग करते हैं, संरक्षित करते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के संदर्भ में मेरा प्रेजेंटेशन है कि हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़े बड़े उसकी करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, स्थानिक वितरण की बात होती है, टाइम एंड स्पेस के साथ वो वेरिएट करता है। जैसे कि सीकर में बारिश की बात अगर हम करते हैं, तो सीकर में, सीकर गर्ल्स कॉलेज में तो बारिश हो जाएगी, लेकिन बॉयज कॉलेज में बारिश नहीं होगी। तो दैट इज ए डिफरेंशिएशन। ये कौन सा डिफरेंशिएशन है? दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन और स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन। स्थानिक वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही रिसोर्सेज के अंदर पाई जाती है। रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ह्यूमन को बाय गॉड एंड बाय माइंड, बाय टेक्निक्स, बाय जिसको क्या बोलना चाहिए स्पेसिफिक वर्ड, हुनर से हमें प्राप्त होते हैं। दैट इज वी गॉट फ्रॉम आवर जनरेशन टू जनरेशन। तो हम जो बात कर रहे हैं, मेरा टॉपिक आप देख रहे होंगे, द कलर ऑफ लाइफ। जीवन रंगों से भरा है। राजस्थान के लिए तो कहा ही जाता है कि राजस्थान की तो जिंदगी ही कलर्स हैं, और उन कलर्स से ही हम जीवित हैं अभी तक। अब तो चूंकि बहुत प्रोग्रेस हो गई है। दैट इज बंधेज, बांधनी जिसको कहा जाता है, टाई एंड डाई जिसे कहा जाता है। और वह टाई एंड डाई किस प्रकार से राजस्थान के लोगों ने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक अपने जीवन को सस्टेन किया हुआ है, अपनी लाइवलीहुड का सस्टेन कर कर अपना घर का काम चला रहे हैं, अपने बहुत सारे रोजगार उससे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट ये है। ऐसे ही हमारे राजस्थान में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पाबू जी की फड़ है, उस पर भी मैंने काम किया है, लेकिन आज आई एम टॉकिंग ओनली ऑन बंदेज। बंदेज कोई अननोन चीज नहीं है किसी के लिए भी, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए भी। दैट इज ए वेरी फेमस क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ राजस्थान। कहीं भी आप जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक ओढ़ना या ओढ़नी आपको मिलेगी, दैट इज मेड बाय विमेन। ओके, तो हमारे घर के अंदर भी हमारी मम्मी, जैसे कि टुडे आई ऑल्सो बियर, पता नहीं यू कांट सी और नॉट, बंदेज। Okay, that is very important for us. That is a part of our life, our lives, कि हम उसको खाते पीते जीते हैं बंदेज को, क्योंकि बिना बंदेज के हमारे कोई शुभ कार्य नहीं होगा। हमारे कोई भी शुभ कार्य है, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे जीवन की मृत्यु हो, मृत्यु तक हमारे यहाँ पर ये जो बंदेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया था। इसीलिए महत्वपूर्ण बनाया गया था कि हम हमारे जो लाइवलीहुड है उसको सस्टेन कर पाए। अगर हम इसको सस्टेन नहीं कर पाते तो फिर ये चीज अभी तक कंटिन्यू नहीं रहती है। बंदेज के बहुत सारे रूप हैं। लहरिया है जो सावन में राजस्थान में आता है, और उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो एक रंगरेज कम्युनिटी है, दैट इज डूइंग दिस वर्क स्पेशली। और ये रंगरेज कम्युनिटी जो है, अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गई है, क्योंकि इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर्स आते हैं, कुछ आर्टिशियंस आते हैं जो अपने ऑर्डर्स इनको देते हैं, और ये उस बांधनी को बनाते हैं। और बांधनी किस प्रकार से हमारे यहाँ जो ज्योग्राफिकल रीजन है राजस्थान के, उन प्रत्येक ज्योग्राफिकल रीजन का अपना एक अलग मोटिव है, मतलब अपना अपना एक डिजाइन है, अपना एक कलर कॉम्बिनेशन है, उसी से वो उसको बनाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने बहुत अधिक कार्य किया है, और इसलिए कार्य किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और सोर्सेज हैं, बोथ हैं ये, जिन पे हमको ज्योग्राफी में ध्यान देना होगा, जो इग्नोर्ड है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो हम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम
अपनी स्टडीज में इंक्लूड नहीं करते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं लोकल इंडस्ट्रीज को, तो इसको जोड़ा जाए और साथ ही इसका अध्ययन किया जाए। जैसे कि आप देखेंगे मैंने जो स्टडी की है वो सीकर है, जयपुर है, नाथद्वारा है, जैसलमेर है, जोधपुर है, जहाँ जो मेजर एरिया है वहाँ को मैंने स्टडी का पार्ट लिया है। इस कहाँ की स्टडीज जो है ये इसमें लिखी हुई है पीपीटी के अंदर। अब डूंगरशाही जो है, अब डूंगरशाही एक डिजाइन बना दी गई है। डूंगर मीन्स पहाड़ी, तो जो हमारे अभी मैं डिजाइन बताऊंगी कि व्हाट इज डूंगरशाही और डूंगरशाही को किस तरह ज्योग्राफी के हिसाब से बनाया गया है। ऐसे ही लहरिया वेव्स को हमने जोड़ा है। जब लहर चलती है पानी की, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं है, और उस पानी को जीने के लिए हमारे यहाँ पर हमने लहरिया को उत्पन्न किया है। जलेबी लड्डू की तरह से गोल गोल डिजाइन होती हैं, तो उसको लड्डू के रूप में उसको बनाया गया है। इसी तरह से राजस्थान के अंदर मैंने कुछ एरिया को लिया है जिसमें आपको मैं बताती हूँ कि जो स्टडी है, दिस स्टडी ऑफ लोकल रिसोर्सेज एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट द लोकल एंड स्मॉल level actions also help to create the platform of opportunities for poor rural women artisan towards sustainable livelihood and better option. The capacity building and inclusion of women in different artisan leads to enhance the various aspects of empowerment, like developing their confidence, their income, leadership, decision making, power strengthening, and self respect also. The main aim of this study was to understand the status of human resource women in rural Rajasthan. And the second is to develop and analyze case study of women artisan of geographical region who involve in tie and dye initiative as a livelihood option. The significance, it's very significant, women to have right to make choice to their determine their future, and they are the 50% of our population part, but they are not they empowered because of money. So this is the source, they are empowered by the money and they earn their bread. अपने घर को रोटी दे रही हैं कुछ महिलाएं, तो they earn their bread for their family and other relatives also. The tool taken by me, that is the personal interviews, personal survey, observation, and especially to living with that artisans and these women at home. Methodology, I collect a data from there, they are doing work at home. See, the method used satisfied the study objectives, quality analysis. You just see the how बंदेज इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ्स. शादी हो रही है तो भी आप देखिए बंदेज का ही टर्बन साफा दूल्हा बांधेगा, उसके घर के लोग भी बंदेज को ही यूज करेंगे. ये कुछ सिटीज के जो जहां मैंने काम किया है, जयपुर, सीकर, जोधपुर और नाथद्वारा के अंदर मैंने काम किया है. वहाँ के कुछ मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों से मैंने सैंपल लिए हैं, कहीं के 10, कहीं के 100, कहीं के 150, ये अलग अलग सैंपल लिए हैं. ये सिटी वाइज डिजाइनर, टायर एंड डायर की कॉलोनीज हैं, जो कॉलोनीज कवर किए, लंबा पार्ट है ये. उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अगेन जो यूजेस ऑफ टाई एंड डाई जो हो रहा है एंड हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, कि अगर महिलाओं का कोई भी होली ओकेशन आता है, जैसे आज भी होली अष्टमी है, तो जहां राजस्थान की महिलाएं आएंगी या नॉर्थ इंडिया की महिलाएं आएंगी, वो सब इस बंदेज को ही यूज करेंगी. बंदेज की रेड जो चुनरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सीकर का पीला है, जब शादी होती है तो राजस्थान में पीला होता है जो मामा के यहाँ से लाया जाता है, वो या कोई
बच्चा पैदा होता है घर में, परिवार में, तो उस लेडी को गिफ्ट में दिया जाता है दैट पीला, दैट इज मेड इन सीकर ओनली। सीकर के अलावा वो कहीं नहीं बनता है, ये सीकर की स्पेशलिटी है। जयपुर में आप आएंगे तो जयपुर का जो टाई एंड डाई है वो मल्टी कल्चर्ड है। मल्टी कल्चर्ड का मतलब ये कि उन्होंने एक बेल, दो डाली, 3 डाली, 4 डाली, जो मैं भी आगे आपको बताने वाली हूँ, उसको डेवलप किया है उन्होंने यहाँ पर। ये देखिए आप, ऑल ओकेशन देखिए आप, डिफरेंट टाइप ऑफ बंदेज लाइन से आपको हर महिला की साड़ी अलग दिखेगी। दैट इज मेड बाय दैट आर्टिशियन, रंगरेज फीमेल्स। अगेन यू सी, जो नीचे जो महिलाएं बैठी हुई हैं इसके अंदर, द टाइप्स ऑफ लहरिया, टाइप्स ऑफ बंदेज। देन अगेन जो आप नीचे जो देख रहे हैं ब्लैक कलर के ऊपर रेड डॉटेड, ये हमारी डेजर्ट का बांधनी है। हमारे डेजर्ट बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर ये बांधनी स्पेशली बनती है। जो क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ होता है, थोड़ा मोटा होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन लिए जाते हैं और इस स्टोन की नॉट बनाई जाती है, और उस स्टोन की नॉट से व्हाइट कलर को रेड कलर दिया जाता है। रेड कलर के बाद फिर ब्लैक कलर उसको टाई एंड डाई किया जाता है। दिस इज द चुनरी। चुनरी के भी बहुत सारे जैसे डिजाइन होते हैं, और वो महिलाएं खुद डिजाइन बनाती हैं। दे आर वेरी शार्प। 1 डाली, 3 डाली, चौबासी, जालदार, बेलदार, शिकारी, लड्डू एंड अदर। मोठड़ा, मोठड़ा आपने देखा होगा कि जब हमारा सावन चला जाता है, सावन चलने जाने के बाद, गनगौर के बाद मोठड़ा होता है, उसके अंदर बाजरा, मोठ और मूंग को बांध के नोट बनाई जाती है। इट्स कॉल्ड मोठड़ा। और उसकी जो डिजाइन होती है वो मल्टी कलर होती है, 2 और 3 उसके अंदर, जिसमें मोठ का और मूंग का डिजाइन अपने आप साफ दिखाई देता है। भोपाल शाही, भोपाल शाही एक उदयपुर और नाथद्वारा का है। वहां के जो किंग थे उनका एक अपना एक पैटर्न था भोपाल शाही, जो वो 5 कलर यूज करते थे। लहरिया टाइप में होता था, स्ट्रिप टाइप्स के अंदर, और उसका वो अपना टर्बन बनाते थे। उसी टर्बन को वहां की जो राज परिवार की महिलाएं थी, उन्होंने अपने ओढ़ने में और साड़ी में उसको इस्तेमाल करने लगे। तो अब भोपाल के अंदर भी भोपाल शाही नाम से जो बंदेज बनता है, दैट इज इंटरनेशनली डिमांडेड। इसकी अंतरराष्ट्रीय मांग बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये कुछ ट्रेडिशनल कलर टाइप है, जो कि नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कलर यूज किए जाते हैं इसके अंदर। केमिकल कलर्स अब कुछ जो फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, अदरवाइज जो होममेड महिलाएं यूज करती हैं, वो सारे के सारे ओरिजिनल कलर होते हैं, जिनके कलर को बनाने के लिए वहां पर फीमेल अपने खुद ही क्रिएट करती हैं। येलो कलर करना है तो हल्दी डालती हैं, रेड कलर डालना है तो घिस के वो कलर बनाती हैं अलग अलग तरह के। यू सी, this is Lahariya, that is of Jaipur, and this is नाथद्वारा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये भोपाल शाही है, स्ट्रेट आपको जो दिख रहा है, जो वेव्स के रूप में आपको दिखा रहा है, पानी के रूप में, क्योंकि पानी है नहीं तो समुद्री पानी को दिखाने के लिए ये वेव्स बनाया जाता है। दिस इज अ मिक्स्ड ऑफ, फोर्थ वन इज मिक्स्ड ऑफ मोठड़ा एंड लहरिया। अगेन मोठड़ा मीन्स मूंग, और उसके दाने की जो ये डिजाइन दिख रही है, ये वो बनी हुई है, और बीच में स्ट्रिप लहरिया की दी गई है। एंड दिस इज अगेन लहरिया। ये लहरिया जयपुर का है। दीज आर द डिजाइन जो मोस्टली फीमेल बनाती है, और इंटरनेशनली मार्केट, लोकल मार्केट के अंदर इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटी छोटी नॉट्स हैं येलो में, रेड के अंदर, ये है एक तारी, ये है एक तारी, ये है चोकर, ये है चक्रभुजा, इसको चक्रभुजा कहा जाता है। ये जो दिख रहा है आपको येलो के ऊपर जो आधी तारी का काम है, ये सीकर का काम है, स्पेशली येलो एंड रेड, और उसके नीचे ये बेल बनाई जाती है। इसको कहा जाता है पीलिया या पोमचा कहा जाता है, जो ऊपर से डाला जाता है।
ये है, इसके अंदर इसको शिकारी कहा जाता है और ह्यूमन फिगर है तो इसको ओरली कहा जाता है, जिसमें इसमें एक औरत का फिगर दिख रहा है, दो तरफ आप देखें, और ऊपर हाथी दिख रहे हैं, तो इसको शिकारी के नाम से जाना जाता है। ये भी, इसमें हाथी हैं बहुत सारे, ये शिकारी हाथी हैं, कुछ हिरन के शेप हैं, इसको भी वही कहा जाता है। इसको कहा जाता है बेलदार। ये सातिया के रूप में बना है और इसको डोमेस्टिक यूज के लिए इत्यादि के लिए यूज किया जाता है। अगेन ये पीला है सीकर का, ये है जयपुर का, ये है जोधपुर का, जो यहाँ पर ये डांस करते हुए ह्यूमन फिगर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये सारे के सारे मोटिव्स वो जिनको हम अनपढ़ इलिटरेट विमेन के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे मोटिव्स उनके तैयार किए गए और इतने कलरफुल, मतलब वो तो कलर बनाते हैं और हमारी जिंदगी में रंगों को भरती हैं महिलाएं। वो आप ये देखिए, ये मोठरा, ये अगेन लहरिया। इसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन उन्होंने डालने की कोशिश की है। इसके ऊपर चोकर भी है, इसके ऊपर लड्डू भी है, इसके ऊपर शिकारी भी है, इसके ऊपर तारी भी है। ये है त्रिबेली, तीन बेल एक साथ चल रही है, इसको त्रिबेली के नाम से जाना जाता है। जितना जितना बारीक नॉट होगा उतना ही पैसा ज्यादा होगा टाई एंड डाई का। लोकल आर्टिस्ट की यही वैल्यू है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे शिकारी के साथ में एक सातिया डाल के इसको इन्होंने डिजाइन किया गया है। ये जो मार्केट में आप देखते हैं आजकल, ये देखिए वेव्स, है ना, इसको लहर बोलते हैं। ये वही पानी का जो प्रेडिक्शन दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है खेत दिखा रहा है, खेत के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर ये बड़े पेड़ हैं और आसपास छोटी जो खेत झाड़ियां हैं और वो है, वो इसके अंदर दिखाया जा रहा है। और इसके अंदर कुछ महिलाएं हैं जो फेस्टिवल के समय खुश होती है, एंजॉय करती है, वो इस उसमें दिखाया जा रहा है। ये अगेन रीजन वाइज ये ओरिजिनल मोटिव है। इसको औरतें व्हाइट कपड़े के ऊपर पहले ट्रेस करती हैं, ट्रेस करने के बाद इसमें नॉट बनाती हैं, फिर उस नॉट को ये देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत डिजाइन देती हैं, वो ब्यूटीफुल डिजाइन, ये देखिए आप। और उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन भी चलता है। कलर कॉम्बिनेशन फैशन डिजाइनर के अकॉर्डिंग चलता है। जो फैशन डिजाइनर आके उनको ऑर्डर देता है या मार्केट की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती हैं। ये देखिए, ये है, इसको हम कहते हैं शिबोरी। ये आजकल बहुत स्कार्फ चल रहे हैं, जो मेल हैं हमारे बहुत शर्ट पहन रहे हैं, कुर्ते पहन रहे हैं, इसको शिबोरी कहा जाता है। मल्टी कलर कॉन्सेप्ट जो अभी चेंज हुआ है, जिसको अभी अडॉप्ट किया है राजस्थान ने 4-5 साल पहले। इससे पहले ये राजस्थान में नहीं था। ये एक्चुअली जापानीज टेक्निक है, लेकिन इसको भी इन्होंने टाई डाई के अंदर ही यूज करके अपनी लाइवलीहुड को कंटिन्यू किया हुआ है। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है मार्केट के अंदर, तो आप देखिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं उन डिजाइनों के अंदर और बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं फीमेल्स ने ब्यूटीफुल तरीके से। आप जब कभी किसी बाजार से निकलते हैं तो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं ये। जैसे ये पीले की साड़ी है, ये चुनरी है जो शादी पर पहनाई जाती है या किसी उस पर दी जाती है। अगेन ये पीले की एक डिजाइन आ गई, ये फिर चुनरी आ गई, ये फिर चुनरी आ गई। ये सावन में जब हमारे यहाँ यूज होता है लहरिया। अब फीमेल के साथ में ये देखिए ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी के साथ में टाई एंड डाई इन्होंने क्लब किया है। ये ओझरिया के साथ में इन्होंने क्लब किया है। ये देखिए बनाने का टेक्निक दिख रहा होगा आपको। ऑल आर रंगरेज कम्युनिटी जो इतनी बारीकी से दिन रात बैठ के काम करती हैं और इस तरह से ये बनाते हैं। ये कम्युनिटी है जो देख रहे हैं आप। अब इनको देखने से आपको लग रहा होगा कि इतनी खूबसूरत साड़ियां जो बड़े बड़े शोरूम में 20-20, 25-25, 30-30 हजार में बिकती हैं, लेकिन इनका लाइवलीहुड देखिए आप, ये उसी स्थिति पर है, बस अपने जीवन की रोटी कमा पाती हैं, रोटी से अपना घर का खर्चा चला पाते हैं। ये देखिए एज देखिए आप, लेकिन दे बिलोंग टू ट्रेडिशन। राजस्थान में ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा जाता है। ये महिला इतनी बूढ़ी होने के बाद भी बंदेज ही पहन रही है। ये देखिए आप, ये इसने लहरिया और भोपाल शाही ही पहना हुआ है। ये ट्रेडिशनल जो लोग हैं हमारे, जो आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे इस क्राफ्ट को मेंटेन किए हुए हैं। और हम जैसे लोग सो कॉल्ड लिटरेट, सो कॉल्ड प्रोफेशनल
और व्हाटएवर, हमने जो हमारे क्राफ्ट मैन है, क्राफ्ट वीमेन है, इनके कोई रेस्पेक्ट नहीं है। हम अगर हम इनके घर पे भी जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया तोड़ के दे हमको कोई भी चीज। ये हम ये नहीं सोचते कि इसने इतनी मेहनत से इतना खूबसूरत बनाया है तो 500 रुपए हम इसको अपनी तरफ से दें कि यस यू टेक इट, आपने बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा आपने बनाया है इसको। ये देखिए राजस्थान की टर्बन, वैरायटी ऑफ टर्बन्स जो इंटरनेशनली डिमांड है। आज कोई शादी पूरे मुझे लगता है हिंदुस्तान में बिना टर्बन के नहीं होती है, एक ये चलन चल गया है। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है राजस्थान के अंदर, और ये लोकल इंडस्ट्री है जिसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है, और उनको उनकी लाइवलीहुड के साथ सस्टेन भी करना है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगेन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये देखिए आप बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे, इतनी खूबसूरती से महिलाएं बनाती हैं। और ये जो आपको मैं ये जो डिजाइन दिखा रही हूँ ये सारे वुलन है, ये वुलन शॉल पे कर रही है ये। और ये वुलन शॉल सारे इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड है, ये लोकल मार्केट की डिमांड नहीं है। लोकल मार्केट तो ये क्या ऐसे कलर है, ऐसा कलर को बिखरा दिया, बुरा कर दिया, ऐसे करके इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनली पीपल आर लाइक दिस। सो जो यही कहा जाता है कि these people are not educated, they are not organized, they are unorganized, unskilled, बहुत सारे वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। बट आई थिंक दे आर द मोर कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इतना योगदान कर रहे हैं जिसको हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। कम से कम अब तो हमें इनको ये इस चीज को देखना होगा। एक तरह से ये वेनरेबल पार्ट है। मैंने जो पहली विमेन स्टडी जो की वो सीकर में की सलमा से, वो 28 साल की है और वो खत्री मुस्लिम और अंग्रेज फैमिली से बिलोंग करती है। शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, तब से उसने अपनी मम्मी से वो काम सीखा और लगातार करती आ रही है। अब वो 28 साल की हो गई है, टर्बन बना रही है, दुपट्टा बना रही है, कुशन, बैग्स, बहुत सारी चीजें, एक से सुंदर चीजें बना रही है। और उसने अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया है, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके पास 15 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो 4,500 से 5,000 रुपए तक मंथली कमाते हैं। और जो बीच का जो मीडिएटर है वो आता है, वो इनसे माल कलेक्ट करता है और मार्केट में ले जाता है। एंड शी इज वेरी काइंड। मैं इसके घर पे एक दिन रुकी भी हूँ। ये देखिए, ये जो पूरी बस्ती आपको दिख रही होगी कॉलोनी सीकर की है ना, ये जो मैंने ये रेड से लिखा, ये पूरी रंगरेज की कॉलोनी है। इन पूरी कॉलोनीज के अंदर काम होता है रंगरेज का। तो इतना बड़ा बिजनेस है सीकर के अंदर, लेकिन नोबडी नोज। सेकंड है तराना बानो की, ठीक है, ये गडरा की रहने वाली है। हम गडरा गए थे और 48 ईयर ओल्ड है। ये डार्क ब्राउन कलर के अंदर, रेड, डार्क ब्राउन और ब्लू कलर के अंदर करती है, बनाती है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन इसका जो पूरा टाई एंड डाई है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। डिजाइनर्स आते हैं बड़े बड़े और वहां से आके सारा माल कलेक्ट करते हैं इनसे। इनका भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया है और ये सारी महिलाएं काम करती हैं। और ये एक अकेली महिला ऐसी है जो करीब लगभग 60 लोगों को पाल रही है। मैम, यस मैम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। Okay. This is Badmer district. Third one is Virubai, Kelly, okay, Bhuribai. ये सब इनके इंटरव्यूज लिए हुए हैं मैंने महिलाओं के। अब जो प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ फाइनेंस, हेल्थ ऑफ प्रॉब्लम है, सोशल कल्चर, रिलीजन है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है जो अनेबिलिटी ऑफ वाटर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनिशिएटिव नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं लिया है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है, वो बना देती है तो कोई मार्केट में खरीदने वाला लोग बहुत कम होते हैं। तो हमें गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। साथ ही बीइंग ए ज्योग्राफर, हमको रिसोर्स ज्योग्राफी के पार्ट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेस के अंदर इन सब चीजों को ऐड करना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये अध्ययन बहुत जरूरी है, हमारी लोकल रिसोर्सेस से रिलेटेड है, तो हमें ये करना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। Thank you very much. You give me opportunity to share my views with academia world.
once again, thank you, Vinod ji, Directed College Education, Commissionerate College Education, JD Soni. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for sharing such a beautiful presentation with us. और आपने पूरे एकेडमिया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करवा दिया है, और निश्चित रूप से अब हम और हमारे कुछ साथी इस बंधेज के लिए शोध करेंगे। तो निश्चित रूप से इस बंधेज में जो लोग लगे हुए हैं, जिनकी तरफ आपने ध्यानाकर्षण का प्रयास किया है, उनके जीवन में हम कोई सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे, क्योंकि जब तक हम उस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उस कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारी उनके लिए बनाई गई कोई भी योजना पूर्ण नहीं होगी। और उसके लिए शोध की आवश्यकता है, और भूगोलवेत्ताओं के लिए इस क्षेत्र में शोध के लिए कितनी अपार संभावनाएं हैं, ये आपके प्रेजेंटेशन से साफ नजर आता है। मैं कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आपने हमारे प्रतिभागियों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया।